اور اب آپ کو لاہور لیے چلیں جہاں پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ ویسے تو یہ کام تو تھا گورنمنٹ پارٹی کا، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو بڑے زور سے کنٹیسٹ کرتے، اس جھوٹ کے لفافے کو پھاڑتے، اس بےہودگی کو روکتے، یہ الیکشنز کے اوپر ہار جانے کے بعد ہر دفعہ ایک سوال اٹھا دینے کی روایت اور ریت کو توڑتے، لیکن گورنمنٹ پارٹی نے نہیں کیا تو پھر ایونچولی Now this is taking a toll on the proceeding of this house. اس ہاؤس کی کاروائی کے اوپر اس کا شور جب آنے لگا تو I had to اس پہ بات کرنے کی میں نے ضرورت محسوس کی آج۔ دیکھیں جو صوبائی اسمبلی پنجاب ہے، میں صرف یہاں پہ جس کے میرے پاس ریکارڈز ہیں میں اس کی حد تک بات کروں گا۔ صوبائی اسمبلی پنجاب میں کل نشستوں پر جو درخواستیں اور انتخابی عذرداریاں ایک الیکشن کمیشن میں ایونٹ ان کی ڈومین تھی، سپریم کورٹ کا جو وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کہنا ہے یا الیکشن کمیشن میں کیا کہنا ہے، انہوں نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی اسپیکر آفس میں بھی یہ اپلیکیشن دی کہ ہم یہ لوگ ہیں اور ہمارا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ تو 15 عذرداریوں کا ریکارڈ ہمارے پاس ان کے خلاف ہے۔ اب یہ ساری کی ساری بھی اگر اکٹھی کر لی جائیں تو پھر بھی کم از کم 130 سے اوپر نشستوں کی برتری حکومتی جماعت کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی اور دنیا کا طریقہ ذریعہ جو ثابت کرے کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ نے سبسٹینشیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کا ایویڈنس دینا ہے، آپ نے اس کے اوپر کوئی دلیل دینی ہے جو مانی جائے یا رد دلیل ہو، آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دینا ہے، آپ نے پروف کرنا ہے۔ یہ خالی ہیر سے کی بنیاد پر آپ ہر چیز کو ہوسٹیج کر لیں، پورے کو ہوسٹیج کر لیں تو کتنی بات ہے، کتنی جھوٹی بات ہے، یہ بنیاد بات ہے۔ اگر آپ کی تکلیف پہنچی ہے تو کیا آپ کوئی انوکھے لاڈلے ہیں کسی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے کہ پچھلی مرتبہ بھی جب آپ نے 4 حلقے سپریم کورٹ میں کھلوائے اور اس وقت پورے ملک کے نظام کو ہوسٹیج کر لیا، پورے ملک کی معیشت کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، دارالخلافے پر جا کر آپ نے حملہ کر دیا۔ بیسکلی دیٹ واز اے ڈسٹرکشن آف اے ڈیموکریسی۔ The symbols of the democracy, those are elected people. Elected people are prime ministers and members and ministers. یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ تو 2014 میں ایک منتخب حکومت کے خلاف 4 حلقے کیونکہ آپ کو حکومت نہیں ملی تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ you will take it to the streets and if you cannot get it through ballot تو اسلام آباد کی سڑکوں پر جا کے بندوقیں لے کر you will get it through bullet. This is what you decided. یہ کوئی جمہوریت ہے؟ اگر آپ حکومت میں نہ آئیں تو انتخابات میں آپ نہ تسلیم کریں، جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں جتنی بھی ساری بات ہے وہ آپ کی ڈیٹیل ایسے آئے کہ آپ اس میں لکھ کر لے جائیں کہ جی میں تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ میں انتخابی عذرداریوں میں بھی نہیں جاتا اور میں کسی پٹیشن میں بھی نہیں جاتا اور میں کسی الیکشن ٹرائیبیونل میں بھی نہیں جاتا، میں کسی کورٹ میں بھی نہیں جاتا اور میں اسٹریٹ پہ جاتا ہوں، اور کیونکہ میں نے I have not received it through the ballot, I will receive it through the bullet. کبھی آپ کے پرویز خٹک صاحب چلیں، وہ بندوق ہاتھ میں اٹھائیں اور گولی لے کر آئیں، کبھی آپ کا یہ علی امین اٹھے اور آ کے وہ پورے نظام کو جامد کر دے، کبھی آپ کے جو ہلوگنز، ایک ایسا شخص مجھے بتائیں جو گالی دیتا ہے، ایک ایسا شخص جو لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ایک ایسا شخص جو کسی کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، ایک ایسا شخص جو ڈس آرڈرلی ہے، ایک ایسا شخص جو کسی قاعدے ضابطے کو تسلیم نہیں کرتا، ایسے شخص کو میں کیسے ریسپیکٹیبل کہہ لوں گا؟ ہاؤ کین مجھے آج I am constrained to call those members respectable. عزت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ نے عزت وہ اپنے نام کے ساتھ لکھوا لی ہے، آپ کو کمانی پڑتی ہے عزت۔ Their respect has to be earned. اگر معزز ہاؤس کا رکن ہونا باعث عزت ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹک ہے that has landed on you. اس کے لیے یہ عزت آپ کو کمانی پڑے گی۔ جب آپ گالیاں دیں گے، گندے نعرے تشکیل دے کر below the belt جو کسی طرح سے پارلیمنٹری نہیں ہیں، ان کو ہاؤس کے اوپر اجازت دی جائے، کیسے دی جا سکتی ہے؟ میری مشکل کیا ہے؟ میں آج کس مشکل میں ہوں کہ مجھے ایک دفعہ پھر
once again I am into a situation जहां पर मुझे फैसला करना है, और फैसला क्या करना है कि मैं क्या ये किताब जो है, मुझे कहा गया कि आप हरी किताब हमें बार बार दिखाते हैं तो इसको पढ़ो। वो कौन सा रुकने असेंबली होगा जिसने ये किताब नहीं पढ़ी होगी और हाउस में आके बैठ जाएगा असेंबली के अंदर इस किताब को पढ़े बगैर? उसको कैसे पता होगा कि उसका हक क्या है तकरीर करने का, उसका हक क्या है बजट बनाने का, उसका हक क्या है कोई एडजर्नमेंट मोशन देने का, उसका हक क्या है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने का, उसका हक क्या है किसी बुनियाद पर भी वो इस किताब को पढ़े बगैर एक लफ्ज आइन के मुताबिक नहीं कर रहा। और ये किताब, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब असेंबली खुद अपने लिए बनाती है। अब इसमें मुझे हेल्प मी इन दिस, टेक दैट रूल जो मैंने जजमेंट में दिया है 223, मैं आपके सामने सिर्फ एक तस्वीर रखने लगा हूं कि ये हाउस का जो कंडक्ट है ये कैसे चलाया जाता है। इसका एक कायदा है, एक रूल है, और वो रूल ये कहते हैं कि इसमें अगर कोई भी रुकने असेंबली ये कवानीन ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसको रोकना, उसको ये ऑब्जर्व कराना, और अगर वो फिर भी तस्लीम नहीं करता तो उसको हाउस में दाखिले से रोकना स्पीकर की जिम्मेदारी में है। तो मैं क्यों गुडी गुडी के चक्कर में बैठा रहूं, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा ना करूं? मैं वहां पर वो फ्लोर आपके हवाले करके आप जिसको मर्जी गंदी नंगी गालियां देते रहे, मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें और उठकर अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप खवातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें। आपने जो कुछ किया वो सब वीडियो पे रिकॉर्डेड है, पूरे मुल्क ने देखा। आपने उस दिन मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान जब तकरीर कर रहे थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, उस दिन भी मैंने एक मेंबर हसन मलिक को सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी किताब लेकर उनके ऊपर पूरे जोर से फेंकी इस तरह से, ये दिस इज नो कंडक्ट, ये ऐसे कैसे चलता है, ये किस तरह से ये एहतजाज हो सकता है? और ये रूल 223 है, इसको अजबर आपको पता होना चाहिए कि ये रूल 223 क्या है, कि जब कभी भी कोई डिसऑर्डरली होगा, जब कभी भी कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, जब कभी भी कोई स्पीकर की बात को मानेगा नहीं। मैंने कहां कोएर्शन किया आपके साथ, मैंने तो आपको मैक्सिमम टाइम दिया। अगर मैं हाउस का वो वक्त जो मैंने ऑपोजिशन को दिया है उस वक्त को मैं हुकूमत के वक्त के साथ मसना करूं तो आपने 60 से 65% वक्त लिया है हाउस के अंदर। आप बात करने की मैं बार कहता हूं, आप तकरीर करें। आपको अगर किसी पेज है अपनी नशिस्तों पर बैठ के एक्सप्रेस करें अपने आप को, लेकिन उस हद तक करें, ये नहीं कि आप कभी मेरे डाइट चढ़ महबूस कर ले। और आपकी तारीख है, आपने क्या किया था दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ, अगर आपके साथ कोई इख्तलाफ करे तो आपके जो किसी न किसी तरह आपने भर्ती करके इस मोअज़्ज़ज़ जगह पर जिसकी इज्जत और तकरीम के लिए आई विल फाइट फॉर द लास्ट मिनट, मेरा मुकदमा क्या है? इस जमहूरियत के जो दावेदार बन के खड़े हैं, ये घर है, इस जमहूरियत के घर को अगर आप पूरा मुकदमा बेस्ड ऑन जस्ट विंसेस है आपके, कोई आपके पास कोई ऐसी कोई सब्सटेंशिएटिंग डिटेल्स भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, तो आप किस बुनियाद पे खड़े? अच्छा ठीक है, अगर आपके किसी लीडर के खिलाफ कोई मुकदमा है जेल में, तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा? यहां पर तो लोगों के लीडरों को फांसियां दी गई हैं, यहां पर लोगों की लीडरशिप की उनके घरों के अंदर अमवात वाकया हो रही थी तो उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, बात करने नहीं दी जा रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी लीडरशिप के ऊपर तो जो मुकदमे हैं, क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं? क्या रेडियो पाकिस्तान की इमारत को मैं जलाता रहूं? क्या पाकिस्तान के अंदर अनारकी मैं करता रहूं? क्या दारुल खिलाफे के ऊपर गुंडे मुसल्ला गुंडे लेकर हमलावर मैं होता रहूं? क्या सुप्रीम कोर्ट वगैरह को उसकी पूरी जो भी उसकी थी वो सारी, मेरा क्या ताल्लुक है उस चीज से? ये सब करें आप तो आपके उस बंदे को जो सजा भी ना मिले उस चीज की। क्या वो अब जो वारंट सर्व करने जाते हैं, वो जो प्रोसेस सर्वर्स हैं, वो जो यूनिफॉर्म में मौजूद लोग हैं जो किसी को बताने जाएं कि आपको अदालत ने तलब किया है, उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स मैं फेंकता हूं?
क्या अदालतों के अंदर गुंडे लेकर, बलवाई लेकर, 500 गाड़ियों के काफले लेकर, मुसल्लह अफराद लेकर उन अदालतों पर चढ़ाई मैं करता हूं? क्या मियां वाली की अदालत से सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को निकलवाकर, वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं? और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है? अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है, मैंने जमानत देनी है। कमाल करते हैं यार। आप रोज आकर हाउस में नंगी गालियां निकालने लग पड़ते हैं लोगों को। और मैंने परसों एक रूलिंग दी। आई एम लिटरली एंग्री। मैं इस तरह, आपको पता है, ऐसे बात नहीं करता, बट आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। मैं ये मुकदमा लड़ना चाहता हूं। क्या ये जो बजट तकरीर है ये होस्टेज हो जाए? कोई बंदा बजट पेश ही ना कर सके कि एक पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन, ए पॉलिटिकल पार्टी हैज अ सच पोजीशन दैट नो फाइनेंस मिनिस्टर कैन स्पीक ऑफ द फ्यूचर ऑफ द प्रोविंस। 12 करोड़ लोगों के जो उसके मुतल्लिक फैसले हुकूमत ने किए हैं, उसकी बात सुनने सुनाने का हमें हक नहीं है। हम नहीं देख सकते कि हम पर क्या टैक्स लगने जा रहा है, मेरी तालीम पर क्या खर्च होगा, मेरी सेहत पर क्या खर्च होगा? क्या यह सुनना मेरा हक नहीं है? क्या ये अखाड़े हैं? क्या ये कबड्डी के मैदान हैं जहां पर आप एक तरफ से 50-60 लोग गुंडे बन के नारे मारते हुए हमलावर होते हैं दूसरे बेंच की तरफ? कैसी बात है यार। मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपना राइट, और जो मेंबर, ये मेरा स्पीकर, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट, दिस बुक सेज दैट। और मैं आपसे बताऊं, देखें, मैंने जो परसों रूलिंग दी, आई कुड फोरसी इट। मुझे आई कुड फील दैट कि माशा बरपा है और इसे में कुछ ऐसे यहां पे शामिल हैं वो हद इस निजाम को लपेटना चाहते हैं। वो जमहूरियत की खिदमत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि ये निजाम लिपट जाए। वो चाहते हैं कि इस हद तक गुंडागर्दी हो कि इस हलूगनिज्म के नीचे ये डेमोक्रेसी दब जाए। दे आर डूइंग नो सर्विस टू द डेमोक्रेसी, दे आर एक्चुअली एनिमीज ऑफ द डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत के दुश्मन लोग हैं। इनकी जमहूरियत में कभी गाली होती है? जमहूरियत में टॉलरेंस होती है। जमहूरियत बर्दाश्त का नाम है। जमहूरियत डिविडेंड्स पब्लिक को देने का नाम है। जमहूरियत सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आपके पास एक एहतजाज का हक है। हाँ, एहतजाज का हक मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा, इट वॉज अ वेरी सिविल वे ऑफ आस्किंग। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पूछा कि ये हमारा हक है एहतजाज करना। तो मैंने उनके सामने आईने पाकिस्तान का प्रियम्बल, रीजनेबल लॉ की जो उसके ऊपर कदगन है, वो उनको बताई। उसको मैंने 19A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बताया। एक तकाबली जायजा पेश किया। 8 सफात की एक रूलिंग में आसान तरीन जुबान में एक एक लफ्ज की वजाहत करके जो एक नुक्ता लिखा उसके साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दो जजमेंट्स कर दी। उनको फैजाबाद धरना केस जब बाकायदा पर लोगों को लाकर बिठाकर मुल्क का निजाम कोलैप्स किया गया और आज उसकी सजा नस्लें भुगतेंगी कि वो किया, आज हम वो जो भुगत रहे हैं। तो मैंने तो उस वक्त उनको उन सब केसेस के हवाले देकर कहा कि एहतजाज करने की आपका पॉलिटिकल राइट है। अब के पॉलिटिकल राइट अदर देन डिग्निटी ऑफ मैन, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लेन किया है। तो मैंने उनसे कहा कि मलिक साहब, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इंतहाई बाइस तकरीम है मेरे लिए, मैं आपके सामने ये रूलिंग रख रहा हूं। इस रूलिंग में कहीं पर ये गुंजाइश नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि डेड हाउस हो, मैं नो आई डोंट वांट दैट। इट्स अ लाइवली हाउस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं। ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। आपके पास राइट है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लेकिन किस हद तक कि डिसऑर्डरली ना हो, किस हद तक कि राउडीज्म ना हो, किस हद तक कि क्वारलिंग ना हो, किस हद तक कि आपका हाथ मेरे गिरेबान तक ना जाए, किस हद तक कि दो मेंबर्स आपस में मेरी बात करने को, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने शोर के नीचे दबा ना दें। इसीलिए स्पीकर को एक कार्डिनल पोजीशन देकर कस्टोडियन के तौर पर बिठाया जाता है। तो ये तो तस्वर आप कर लें कि मैं आपके राइट्स का कस्टोडियन हूं, तो आई हैव अ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस। फॉर एवरीवन आई हैव टू बी द कस्टोडियन। कैसे हो सकता है?
कल वजीर आला ने तो अपनी तकरीर में कह दिया कि मैं मुझे जिनके हक की कदर है. नो चीफ मिनिस्टर, दिस इज नोबडीज राइट, दिस इज नोबडीज राइट. ये मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है. अगर वो लोग वहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछाल कर फेंक देंगे, ये किसी का हक नहीं है. दिस इज नोबडीज राइट. ये कैसे हो सकता है? इस हाउस को इस आइन के मुताबिक चलना है. और मैं अपना ये मुकदमा आज से वारंट्स, आई रोट द लेटर्स के नहीं दूंगा. कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा. आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था. जब आपकी हुकूमत थी इस जगह पर और यहां पर स्पीकर परवेज साहब वाज लाइक एन एल्डर टू मी. जब वो स्पीकर थे, कम से कम 50 एमपीएस के खिलाफ ये पीछे कुला गिदर सिंह में पर्चा, मैं खुद गया उनके पास, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, असेंबली के अरकान के पर्चे दे रहे. ऐसे था यहां पर. और मैंने आपके पर्चे रोके. मैंने कहा एमपीएस को अरेस्ट नहीं करने दूंगा. और अगर कोई हो गया अपनी गुंडागर्दी पर, बदमाशी पर, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने पर, इस मुल्क की अमलाक को जलाने पर, मेट्रो बसेस को तोड़ने पर, अस्करी बैंक्स को जलाने पर, किसी जगह पर भी जाकर हादसे करने पर, लोगों की लाइफ को डिसरप्ट करने पर, पब्लिक ऑर्डर तोड़ने पर, मैंने फिर भी, क्योंकि मुझे राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की कदर थी कि क्या हुआ अगर कोई गुंडागर्दी करता आदमी लोगों का हक की नुमाइंदगी रखता है, तो मैं उस हल्के के लोगों को उनके नुमाइंदगी के हक से तो नहीं छीन सकता ना. मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए. मैं कोई एहसान जतलाने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं अगर आपके हकूक का मुहाफिज बन के बैठा था तो क्या था? वेयर वॉज आई ड्राइविंग दिस अथॉरिटी फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यही आइन मुझे ये कह रहा है. इसी आइन के हर उस आर्टिकल में लिखा है कि ये आपका सियासी हक नहीं है. ये गुंडागर्दी आपका सियासी हक नहीं है. ये गालियां देना, तज़हीक अमेज ऐसे अल्फाज जो कोई अपने घर में, अच्छा आप कह सकते हैं ये? कम ऑन, हैव सम सैनिटी प्लीज. आई एम कंपेल्ड टू पास दिस ऑर्डर टुडे. आई हैव अ ड्यूटी. और मैंने ये ड्यूटी परफॉर्म. आज मैं मुझे तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये उनका हक है, ओपनली कहा, बट दिस इज माई ड्यूटी टू परफॉर्म एज अ स्पीकर. आज सुबह एक बड़े मोहतरम सहाफी हैं जनाब अली काजिम वहीद साहब, वो एक ट्वीट कर देते हैं कि मैंने देखना है कि स्पीकर साहब किसी की खुशनुदी. और मिस्टर काजिम खान, यू आर प्रेसिडेंट सीपीएनए, यू नो आई एम नॉट दैट डे, आई एम नॉट बोर्न ऑन दैट डे खुशनुदियों वाले. ये मेरा ऑफिस है, इस मनसब की जिम्मेदारी है. आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड आई विल परफॉर्म इट. आई हैव बार्ड ऑल दोज. ये रिपीटेड एक्ट है. इन्हीं अरकान ने पिछली मर्तबा भी गुंडागर्दी की हद कर दी. और करैक्टर क्या था? अंदर हाउस में आए, अपनी हाजिरी लगवाई, तनख्वाह ली और बाहर जाकर खड़े हो गए कि हम तो बाइकआउट करते हैं. तो क्या ये तनख्वाहें, ये मराहत लेना? अगर भाई सिस्टम पे इतना एतराज है, अगर प्रोटेस्ट ही करना है, आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेस्ट. मैं बताता हूं. गो एंड रिजाइन. देखो फिर कैसे एक तरफ सारी पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी बनते हैं, और जो जुर्म तुमने किए, वो जुर्म क्या मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक हो सकता है? इट्स एन एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस. ये मैंने रूलिंग की कॉपी आपके साथ दी है. मैं आपको हक देता हूं कि किसी एक आप में से, मोजेस मेरे जर्नलिस्ट दोस्तों में से, इफ यू कैन, उसको उसकी एक लाइन को कॉन्ट्रावीन कर दें. जो मैं कह रहा हूं अगर गलत है तो प्लीज आस्क मी, पुट मी टू द क्वेश्चन. ये कैसा इंसाफ है और कहां का ये निजाम है कि आप मुझे बिल्कुल मजबूर करके लाकर यहां पर खड़ा कर दें और मैं आपकी इस बात को ऐसी तस्लीम करता जाऊं जैसे आप चाहते हैं, और आप होस्टेज कर लें और आपकी गुंडागर्दी के ताबे हर चीज हो जाए और आप इसको बिल्कुल अपने उसके मुताबिक करके खड़े हो जाएं. ये खालिद साहब मुझे जरा दें प्लीज. ये
ये आपको मैं एक स्टोरी सुनाने लगा हूं आज। तहरीके इंसाफ की हुकूमत, सूबाई असेंबली पंजाब, I have respectfully done everything what I can do. I have respectfully done everything what had to be done. मैंने सब किया। मैंने इनका in a minute, ये तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी। और जरा सुन लें, परवेज साहब स्पीकर थे, 5 साल तक एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी, एक स्टैंडिंग कमेटी, नॉट अ सिंगल स्टैंडिंग कमेटी, 5 साल तक। आप मुझे बताएं, मैंने इन द फर्स्ट डे ऑफ टेकिंग द ओथ ऑफ दिस ऑफिस, आई सेड दैट स्टैंडिंग कमेटीज विल बी मेड स्ट्रेट अवे, और कोई लेजिस्लेशन स्टैंडिंग कमेटीज के बगैर नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं, आप सब इस असेंबली को कवर करते हैं, ये सारी की सारी लेजिस्लेशन तहरीके इंसाफ के दौर में जो भी, आज मैंने रिकॉर्ड्स रखने हैं आपके सामने, किसी एक लॉ में भी ऑपोजिशन की जीरो इनपुट है, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू गेट इनटू इट। क्या इस कभी अमल को खत्म करके, ऑपोजिशन को उनकी से देके, स्टैंडिंग कमेटीज को एम्पावर करके, नेशनल असेंबली के साथ एट पार करके, सुओ मोटो इख्तियार देके, गवर्नमेंट को चेक करने का इख्तियार देके, ऑपोजिशन को उनके जुस्से के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप देके मैंने जमहूरियत की खिदमत की कि नहीं की? क्या उस टायरेंट पोजीशन से निकाल के डेमोक्रेटिक पोजीशन में लाना ये मेरा जुर्म था? कम ऑन, हैव सम हार्ट, एटलीस्ट हैव सम हार्ट। और आपके पास या तो आपके मुकदमे में जोर हो, आपके पास एक ओवरवेलमिंग, मेरे पास ये रिकॉर्ड आ जाए that the petitions you have filed are in more than numbers what the victory government is claiming। 95% तक बैठे अरकान के ऊपर एक इंतखाबी उजरदारी नहीं है, और आपका शोर जो है वो फलक शगाफ आपका शोर है, ऐसा कि आप आसमान के अंदर दरार डाल देंगे, और हकाइक के बरक्स है। क्या बात है यार, इतना बड़ा झूठ। यू आर लाइंग थ्रू योर टीथ। आपका अपना करैक्टर क्या है? आप मुझे आज यहां पर आके खड़े होकर, हाउ डेयर यू, आप फौज, पाकिस्तान की वो फौज जिसकी हुर्मत, इस वतन की हुर्मत जिनके कंधों पर है, जो मेरा अगर कभी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है तो दे डिफेंड मी लाइक नोबडी एल्स डिफेंड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जंगें जारी हैं आज, आप उनकी आकर यहां पे आप लाके यहां पे गालियां निकाल लें आप उनको? Can I allow you to do that? अगर जज आपकी मर्जी का ना हो, अगर साकिब निसार ना हो, उमर अता बंदयाल ना हो, वो जज आपकी मर्जी ना हो, आप उसको नंगी गालियां निकाल दिया क्या? कैसे यार? मतलब क्या है आप? Who are you? हद होगी यार, कोई तमाशा बन गया। मतलब तुम लोगों ने मजाक समझ लिए। As long as I sit on this chair, आपने जो तमाशा करना है, मैं आपको, I am giving you the right reasons, I have suspended you. Take this ruling of mine to any court of law. मेरे पे हक कोई नहीं, मेरी एक अलग legislative organ की headship है मेरे पास। I am passing this order today. If you want to take it for interpretation to any court, I will come there personally and defend there. मैं ये हक तस्लीम करवाना चाहता हूं कि अगर किसी और को बात करने का हक है, वजीर खजाना को भी बात करने का हक है, उसके उस बजट अवामे पाकिस्तान का हक है, ये उनका राइट है। ये जगह अहले हलो अक्द की थी, यहां दलील होनी थी, तकरीर होनी थी, यहां बजट पास होने थे। इसने किसी की गुंडागर्दी का होस्टेज नहीं होना था, इसलिए इसको बाइस इज्जत कहा जाता था, इसको मोअज़्ज़ज़ अवान इसलिए कहा जाता था कि यहां गालियां नहीं दी जाएंगी, यहां पर हक के नुमाइंदगी अदा किया जाएगा। किसी एक गिरफ्तार शख्स को छुड़ाने के चक्कर में पूरी की पूरी असेंबली की इज्जत और तकरीम को दांव पर नहीं लगा दिया जाएगा। इज्जत ढूंढनी, दस्तार सर पे रखनी, तो दस्तार को रखने का अहल भी होना चाहिए। ऐसे कैसे? कमाल कर दिए। ये है आपकी औकात। जितने कवानीन आपने पास किए,
Not a single member of opposition consulted in that. ये है आपकी जमहूरियत। 3.5 साल तक आपकी हुकूमत, उसके बाद परवेज साहब की हुकूमत। क्या बात करते हैं? एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लॉ नहीं गया, सारे के सारे अपने चंद क्रोनीज को बिठाया और कैसे कैसे कवानीन आपने पास किए जिसने शख्सी आजादियां छीनी, जिसने जमहूरियत का बुरा किया। कैसे कैसे कवानीन आपने पास नहीं किए। एंड आई विल स्टैंड एज अ टॉर्च बेरर फॉर दिस राइट। मैं ये मुकदमा, मैंने ये झंडा आज उठा लिए। आप अपनी अपनी सियासी जमातों में बात करें। दिस इज अ रॉन्ग मैन एट अ रॉन्ग प्लेस टुडे। आई एम सेइंग दैट। मैं इन असेंबलियों की हुर्मत की लड़ाई लड़ूंगा। आपका बयानिया मुकम्मल झूठा बयानिया है। आई एम सेइंग दिस एज अ कस्टोडियन, as a neutral arbiter I am saying that. मैं किसी फ्रीक की तरफदारी करके बात नहीं कर रहा। अपनी हैसियत और औकात जमहूरियत के साथ ये है, आज दर्श देते हैं खड़े होकर। मेरी चेयरशिप में मैंने इन दिस स्पीकर ऑफिस आई हैव नेविगेटेड ऑलमोस्ट लाइक 50 to 60 लॉज, 50 से 60 के करीब कवानीन। 78, I stand corrected. Just 2 laws due to the constraint of time, 2 कवानीन ऐसे थे जिनको मैंने रूल सस्पेंड करके किया। बाकी सब मैंने थ्रेडबेयर डिस्कशन में मैंने भेजे स्टैंडिंग कमेटीज पर, उनकी रिपोर्ट्स को देखा, एक एक कानून पर देखा, और जहां पर कहीं मुझे हुकूमत के किसी कानून पर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे बतौर स्पीकर, मैंने आपके सामने, मीडिया के सामने कहे हैं। नहीं कहे? हद होगी यार। मतलब क्या मजाक है ये? चंद आपके वहां पर नॉनसेंस क्रिएट होते लोग, आप कहते हैं हम रोक नहीं सकते, आपकी बात नहीं मानते। तो भाई देन व्हाई यू हैव दिस रोल टू बी एट द स्टीयरिंग ऑफ योर पार्लियामेंट्री पार्टी? नाउ लेट मी टेल यू द लॉ। इफ एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर you tell your people to do and perform a certain act, and if that is performed in a way as party or parliamentary party leader has conveyed, आपके केस के फैसलों में हमजा साहब की हुकूमत को खत्म करने के लिए आप ही के चहीते जजों ने ये फैसला दिया। उमर अता साहब मेरे बहुत मोहतरम थे, उनके फैसले ये। आपको नहीं पता कि आप मुझे अपने खिलाफ एक रेफरेंस लिखकर भेजने पे मजबूर कर रहे हैं? एंड आई एम सेंडिंग दिस रेफरेंस बिकॉज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैज टोल्ड मी दैट हिज पार्टी मेंबर्स डोंट ओबे टू व्हाट द पार्लियामेंट्री लीडर सेज, एंड आई एम सेंडिंग दिस रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन एज अ स्पीकर अगेंस्ट ऑल दीज 26 मेंबर्स, इन 26 अफराद के खिलाफ कि इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी लीडर की हदायत को तस्लीम नहीं किया। उमर अता बंदयाल के फैसले की रोशनी में, जिसके नतीजे में मियां हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरी थी, मैं इन 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूं। दूसरा, आप आ सकेंगे असेंबली के अंदर, बट सिर्फ प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होने के लिए। आपने इस हाउस का इस्तेहकाक मजरू किया। अगर कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर हाउस का इस्तेहकाक मजरू करता है तो मैं उनको बुलाता हूं यहां पर, मैं उनको यहां पर बुला के असेंबली के अंदर आपके सामने है। इस हाउस का इस्तेहकाक मजरू हुआ, 2 मुअज़्ज़िज़ सेक्रेटरीज को हाउस की रिकमेंडेशन पर, चीफ मिनिस्टर को बहुत एहतराम है इस हाउस का। शी इज अ वेरी मैग्नेनिमस लेडी। मैंने कल देखा, कल मुझे उनकी एक और सलाहियत का मोतरफ होना पड़ा। मैं इतने शोर शराबे में आपको बड़ा स्टूडेंटरी तस्वर करता हूं। मैं अपने आप को बड़ा, आपको पता है, आप सब जाते हैं, देखते हैं। आई गो टू पब्लिक। मैं अपने साथ एक अवामी रिश्ता रखता हूं लोगों का, और मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक ये जो बड़े अवामी हमायत के दावेदार बड़े बड़े अपने नाम के साथ ट्रक में लोड करके लेकर आते हैं, इनसे, इनके साइजेस से बड़े जो यहां पर
पूरे पंजाब से इकट्ठे करके पूरे पाकिस्तान से कारकुनान को लाकर मीनारे पाकिस्तान में पूरी पार्टी की स्ट्रेंथ लगाकर सिंगल हैंडेडली विद मी माय टू ऑफ ब्रदर्स मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनसे बड़े शोज किए, आप उस सब के गवाह हैं। आई लाइक ओरेटरी, मुझे पसंद है तकरीर करना। मैंने आई हैव टू गिव फुल मार्क्स यहां पर जिसका मुशाहिदा किया और उसके दरमियान खड़े होकर अपना कंपोजर डिस्टर्ब किए बगैर एक बड़ी बेहतरीन अदायगी के साथ और इस गंदगी को भी ये कहकर के ये इनका हक है, मानता हूं शी इज समबडी जो इनकी पार्टी में इस वक्त, मैं तो एक आईनी ओहदे पर बैठा एक न्यूट्रल आर्बिटर के तौर पे बात कर रहा हूं। अगर मैंने कंडक्ट देखना हो कि किसका क्या कंडक्ट है, आई कैन गारंटी यू दैट मरियम नवाज शरीफ हैज द एबिलिटी टू लीड दिस नेशन, आई कैन टेल यू दैट। कमाल करते हैं यार, आप सब देखने वाले थे कल। आप मुझे बताएं जो कुछ वहां पर कल पुकारा गया, जिस तरह से वहां पर वो नारे लगे, कोई शख्स जिसके घर में तरबियत हो ऐसी बात कर सकता है? कैन यू डू दैट? नो। और मैं आपसे एक तफसील और भी शेयर करना चाहता हूं। मैंने ये आपको बता दिया कि मैं इनके खिलाफ जो एक्शंस ले रहा हूं, मैं इन लोगों के खिलाफ, और ये माइंडेड, इससे पहले कोई गलतफहमी में रहे, इसी आइन में लिखा है कि इन रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हासिल है, इन कवानीन को, ये आईनी है। इसी आइन में जो लिखा है उसके मुताबिक हाउस के ब्रीच करने के इस असेंबली की, मैं आज आपको आई एम सेइंग इट वेरी लाउडली, मैं बगैर इस चीज के कि मुझे इस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुदा न खास्ता मुझसे कोई गलत बात कह दी जाए, लेकिन मैं ये जरूर आपको कहना चाहता हूं। लाहौर में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।